एक बुक निकालो, नोट डाउन करिए। नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके सब पॉइंट है। पहले इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, अल्डिहाइड क्या है, कीटोन्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है इसका सीक्वेंस में जो है आपको यूनिट की, तो इसमें छोटा दिख रहा है ना, सीक्वेंस में जो है वो डायरेक्ट दिया हुआ है आपको क्लासिफिकेशन, नई सिलेबस के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ये जो बेसिस है इसका, क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है कार्बन स्केलेटन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट आपको नए सिलेबस में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। तो आप सभी को मालूम है जनरल इंट्रोडक्शन, aldehyde ketone and carboxylic acid are the organic compound in which carbonyl carbon is present. Aldehyde ketones and carboxylic acids are the organic compound in which carbonyl carbon is present. Carbon oxygen double bond remaining two valencies are empty is called as carbonyl carbon. Hence these compounds are called as carbonyl compound. Aldehyde, ketones and carboxylic acid are the compound in which carbonyl carbon is present. ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होने के कारण इन कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। Aldehyde, ketone and carboxylic acids are the compounds in which carbonyl carbon is present, and hence due to carbonyl carbon these compounds are called as carbonyl compound. These compounds are called as carbonyl compound. Carbon oxygen double bond is called as carbonyl carbon. Carbon oxygen double bond is called as carbonyl carbon, and remaining two valencies are empty. If one of the valencies is satisfied by alkyl group and one of the valencies is satisfied by hydrogen atom, the compound is called as aldehyde. इस compound को क्या बोलेंगे? Aldehyde. The functional group of aldehyde is dash CHO, is called formyl group. Carbon oxygen double bond remaining two valencies are empty is called as carbonyl carbon. If both the valency of carbonyl carbon is satisfied by alkyl group is called as ketone. Is called as ketone. The functional group of ketone is C double bond O, that is keto group. So aldehyde, ketone and carboxylic acids, ये हमको चैप्टर स्टार्ट करने पहले इंट्रोडक्शन देखे हमने कि भाई अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कंपाउंड है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है। द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बोनिल कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। बट इन केस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन द कार्बोनिल कार्बन इज कॉमन। कार्बोनिल कार्बन इज common, therefore they show many similarities in their methods of preparation as well as chemical properties. क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल कार्बन क्या है, कॉमन है। अल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है, कॉमन है। तो अल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन है, इसलिए दोनों की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। क्या है? सिमिलरिटीज।
In aldehyde and ketone, both compound contain carbonyl carbon, therefore they show many similarities in their methods of preparation as well as chemical properties. Naturally occurring carbonyl compounds are present in carbohydrate, vitamin, proteins, nucleic acids, as well as they also the important constituent of pharmaceutics and fabrics. ये फैब्रिक्स और फार्मास्यूटिकल के भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। कौन? कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दे ऐड फ्रेग्रेंस एज वेल एज फ्लेवर टू द नेचर। ये नेचुरली तौर पे जो कंपाउंड मिलते हैं उनके अंदर में फ्लेवर भी ऐड करते हैं और फ्रेग्रेंस भी, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड कंटेन carbonyl compound such as almond. In almond benzyl is present. Cinnamon के अंदर में क्या है? cinnamoldehyde है. Vanilla bean, vitamin K, etc. So it's all about the general introduction of aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने नहीं बताया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन बाद में बताऊंगा। ये यूनिट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक में अपन अल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आसान जाएगा। तो अभी सिर्फ अपन ने काय का इंट्रोडक्शन देखे, अल्डिहाइड कीटोन्स का। तो हम क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड कीटोन्स आर द कार्बोनिल कंपाउंड इन दिस कार्बोनिल कार्बन इज प्रेजेंट। ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, और जिन कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट रहता उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। बिकॉज क्योंकि इन बोथ अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन कार्बोनिल कार्बन इज कॉमन। दोनों के अंदर अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल कार्बन क्या है? कॉमन है। अल्डिहाइड में भी कार्बोनिल कार्बन है और कीटोन में भी कार्बोनिल कार्बन है। Because in both the compound carbonyl carbon is common, therefore it shows many similarities in their methods of preparation as well as chemical properties. इसीलिए अल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी क्या बताएगा? सिमिलरिटीज बताएगा। काय में? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। कुदरती तौर पर नेचुरली ऑकरिंग, कुदरती तौर पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो काय में प्रेजेंट है? नेचुरली ऑकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। काय में प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट में है, विटामिन्स में है, प्रोटीन्स के अंदर है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर है। दे आल्सो एड द फ्रेग्रेंस एज वेल एज फ्लेवर टू द नेचर एंड आल्सो दे आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स एंड फैब्रिक्स। कार्बोनिल कंपाउंड फार्मास्यूटिक्स और फैब्रिक्स के भी क्या है? इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। बट हाउ विल यू डिफाइन अल्डिहाइड? अल्डिहाइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन कीटोन? आप कीटोन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो अल्डिहाइड कैन बी डिफाइंड एज अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड कैन बी डिफाइंड एज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। The functional group of aldehyde is CHO group. CHO group is also called as formyl group. The functional group of ketone is keto group. Carbonyl carbon is the functional group of ketone. Yes. But how will you define aldehyde and ketone? Aldehydes can be defined as aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा, RCH2OH. This is the general representing formula of alcohol. Primary alcohol. When primary alcohol is oxidized by K2Cr2O7 by dilute H2SO4, potassium dichromate in presence of dilute sulfuric acid. When alcohol is oxidized by potassium dichromate and dilute sulfuric acid, alcohol is converted into aldehyde. The hydroxyl group of alcohol is converted into carbonyl carbon. काय में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनिल कार्बन by the removal of two hydrogen atom. By the removal of two hydrogen atom, one hydrogen is removed from the hydroxyl
alcohol molecule is converted into aldehyde plus H2. Therefore these aldehyde can be defined as, इसलिए हम इस aldehyde को कैसे डिफाइन करेंगे? Aldehydes are the first oxidation product of primary alcohol. अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा काय में? अल्डिहाइड के अंदर। इसलिए अल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या बन गई? फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन करने से जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, वो कहलाता है अल्डिहाइड। क्या कहलाता? अल्डिहाइड। Therefore, aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. But in case of aldehyde, the formyl group is always present at the terminal carbon, terminal of the chain. क्या बोलेंगे इसको? Terminal, यानी ending पर last में कहाँ present है? It can also be written as R C double bond O H. Therefore, this formyl group is always present at the terminal of the carbon chain. In case of aldehyde, aldehyde के केस में CHO group, that is formyl group is present. formyl group कहाँ पर present है? At the terminal. At the terminal. Ketones. Ketone can be defined as, ketone को कैसे define करेंगे अपन? Ketones are the first oxidation product of, जैसे aldehyde का, aldehydes are the first oxidation product of प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है कौन? अल्डिहाइड। उसी तरह से कीटोन क्या है? कीटोन आल्सो द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, बट दिस टाइम सेकेंडरी अल्कोहल। किसका? सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स आर द first oxidation product of secondary alcohol. Secondary alcohol is represented by RCHOH. R, secondary alcohol, when oxidized by potassium dichromate in presence of dilute sulfuric acid, it converts secondary alcohol into ketone by the elimination of two hydrogen atom. By the elimination of two hydrogen atom. Elimination का मतलब removal of two hydrogen. एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से निकलेगा, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से रिमूव होगा, दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और एक अल्फा कार्बन से, and it converts secondary alcohol into RC double bond O R plus H2O, that is ketone. Therefore कीटोन कैन बी डिफाइन एज, कीटोन को हम डिफाइन करेंगे, कीटोन को कैसे बताएंगे, ये कैसे मिला, ये किसका प्रोडक्ट है? कीटोन प्रोडक्ट है सेकेंडरी अल्कोहल का। बाय विच रिएक्शन? बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देयरफॉर कीटोन कैन बी डिफाइंड एज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। किसका है ये? सेकेंडरी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। यहां पर सुनो, यहां पर इसको नोट डाउन करो, रिएक्शन सिलेबस की बुक में नहीं है। बट इन केस ऑफ कीटोन, एक मिनट, इन केस ऑफ कीटोन के केस में कार्बोनिल कार्बन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन। कार्बोनिल कार्बन कहां पर है? इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन के मिडल में है, बीचों बीच में। एक ये रिएक्शन
और एक ये रिएक्शन और ये दोनों डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन और डेफिनेशन नंबर 1, ये डेफिनेशन नंबर 2, ये दोनों डेफिनेशन के नीचे ये रिएक्शन लिखो, ये डेफिनेशन के नीचे ये रिएक्शन लिखो। बाजी पड़ जाओ तो मैं तो झामे मिलेंगे तुमको। भाई वो पीच का बस हो गया। हो गया, दोनों हो गए डेफिनेशन। नेक्स्ट है डालो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड है डीगा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आप सभी के? हाँ अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, थोड़ा सा लिखो पहले। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नॉमेनक्लेचर कल पढ़ेंगे ना। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। पहली हेडिंग पहले देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है। ऐसा तीनों का जो क्लासिफिकेशन है, अल्डिहाइड का रहे, कीटोन का रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रहे, तीनों का क्लासिफिकेशन जो है सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में ही एक एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। अभी हमको सिर्फ क्या देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, किस बुनियाद क्या है उसकी, कौन से बुनियाद पर उसको क्लासिफाइड किया गया,
तो उसका बेसिस है कार्बन स्केलेटन। क्या है? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज CHO, दैट इज फॉर्मिंग ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज कीटो ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट रहते हैं, मैंने इससे पहले बेसिक में बताया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है उसके दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है हाइड्रोकार्बन का पार्ट और एक होता है फंक्शनल ग्रुप RG। ये है हाइड्रोकार्बन का पार्ट और ये है फंक्शनल ग्रुप। जैसा फॉर एग्जांपल अल्कोहल ले लो, CH3OH, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड उसी प्रकार से एल्डिहाइड ले लो, CH3 CH2 CHO, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है और ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट है, एक होता है हाइड्रोकार्बन का पार्ट और एक होता है फंक्शनल ग्रुप। एक क्या रहता है? एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट और एक फंक्शनल ग्रुप। ये जो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ये पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जो पार्ट है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा उसके दो पार्ट रहेंगे, एक हाइड्रोकार्बन जो कि पेरेंट कहलाता है और एक फंक्शनल ग्रुप। दो पार्ट, हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड लाइक melting and boiling point, solubility, order, etc. And functional group is responsible for chemical properties. Functional group काय के लिए responsible है? Chemical property के लिए। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा नहीं होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा नहीं होगा, कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग, कंपाउंड पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का असर होता है नहीं होता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्रिग्नाल रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, रिडक्शन रिएक्शन करेंगे तो कौन सा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ कार्बन स्केलेटन। ये क्या कहलाएगा? कार्बन स्केलेटन, ठीक है। तो इसका जो बेस है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस है कार्बन स्केलेटन। क्या है? कार्बन स्केलेटन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है किसका? ये कीटोन का एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें पार्ट है एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड, व्हाट इज मीन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड? इफ द फॉर्मिंग ग्रुप is directly bonded or attached with alkyl group or saturated carbon or sp3 hybridized carbon, इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन अकेला इकलौता डैश CHO, इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन के पार्ट को फंक्शनल ग्रुप जब अटैच हो जाएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा? कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए दो पार्ट आवश्यक है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट और फंक्शनल ग्रुप का पार्ट, दोनों। फंक्शनल ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो हाइड्रोकार्बन को अटैच नहीं होता। समझ रहे? तो जब CHO ग्रुप, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ
aldehyde. CHO group, that is the functional group of aldehyde when directly bonded or attached with alkyl group or sp3 hybridized carbon or saturated carbon is called as एलिफेटिक अल्डिहाइड. उसको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक अल्डिहाइड. जैसा कि फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CHO, ये भी क्या हो गया? एलिफेटिक अल्डिहाइड. बहुत सिंपल है, आपने 11th के अंदर भी पढ़े. एलिफेटिक एरोमेटिक. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े हमने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े हमने, पढ़े कि नहीं पढ़े? अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को जुड़ा हुआ है कौन? CHO ग्रुप, तो बन जाएगा एलिफेटिक अल्डिहाइड. अगर एरोमेटिक कार्बन को अटैच रहेगा तो फॉर्मिल ग्रुप. फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड. फॉर्मिल ग्रुप क्या है? अब इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में कार्बन का स्केलेटन क्या है? कौन सा कार्बन का स्केलेटन है? एलिफेटिक कार्बन का स्केलेटन है या एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बन का स्केलेटन है? इसके बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन. ये किससे अटैच होता? ये एरोमेटिक रिंग. अगर ये एरोमेटिक रिंग को अटैच हो गया तो ये बन गया एरोमेटिक अल्डिहाइड. अगर फॉर्मिल ग्रुप, इफ फॉर्मिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड और बॉन्डेड विद द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्डिहाइड. क्योंकि फॉर्मिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग को बॉन्डेड है, इसलिए बन गया एरोमेटिक अल्डिहाइड. एलिफेटिक अल्डिहाइड क्योंकि CHO ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद एलिफेटिक कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. हमने बेंजीन के केस में sp3 नहीं यूज कर, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बेंजीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 है. क्या है? sp2. समझ में आया? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. तो दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, काय के बेसिस पर है ये? कार्बन स्केलेटन. इफ द फॉर्मिल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड और अटैच्ड विद, इफ फॉर्मिल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड और अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज कॉल्ड एलिफेटिक अल्डिहाइड. समझ रहे? इन केस ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड ओनली वन एक्सेप्शनल केस इज प्रेजेंट, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड. सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस है, कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड, जो कि कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं रहता है, इन स्पाइट इज अटैच्ड विद द हाइड्रोजन एटम. किससे अटैच रहता हो? हाइड्रोजन से अटैच रहता. समझ गए? कितना आसान क्लासिफिकेशन है कि भाई फॉर्मिल ग्रुप किससे अटैच रहेगा? अगर अल्किल ग्रुप से अटैच है, अल्किल ग्रुप में क्या रहेगा? कार्बन. और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? तो अगर फॉर्मिल ग्रुप अल्किल ग्रुप से बॉन्डेड है तो बन गया एलिफेटिक अल्डिहाइड. अगर फॉर्मिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो बन गया, तो क्या बन गया? एरोमेटिक अल्डिहाइड. समझ में आ रहा? इट इज द एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड and it is the example of aromatic aldehyde. Understand? लिखा के दो, लिखते रंग दे दो. ये लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड. एलिफेटिक अल्डिहाइड, उसमें पहले हेडिंग डालो स्मॉल a करके एलिफेटिक अल्डिहाइड. The organic compound in which the organic compound in which within 3 months
3 मंथ में कंप्लीट कर लेने का होगा क्या सिलेबस लिखो। द कंपाउंड इन विच एडिपेटिक अल्डिहाइड एडिक डाले स्मॉल ए करके उसमें लिखो द ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फॉर्मिल ग्रुप the organic compound in which the formyl group dash CH2 ये ब्रैकेट में लिखना है dash CH2 is directly attached with sp3 carbon is called aliphatic aldehyde। एग्जाम्पल में लिखना है दो, ये देखो ये दो एग्जाम्पल लिखना है आपको, एक दो। इसका नाम क्या है अभिलाषा? एसिटाल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है? शाबाश, वेरी गुड। शॉर्ट में लिखा के दे दूंगा। दूसरा लिखो एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक the organic compound in which the formyl group that is CHO the organic compound in which the formyl group ब्रैकेट में लिखना फॉर्मिल ग्रुप का फॉर्मूला या ये लिखना फॉर्मिल ग्रुप is directly attached with aromatic carbon is called aromatic aldehyde। एग्जाम्पल में बेंजल्डिहाइड। एग्जाम्पल लिखना बेंजल्डिहाइड का। CHO ग्रुप किससे बॉन्डेड है? बेंजीन कार्बन, ठीक है, सफिशिएंट फॉर द डे, ठीक है ना। इसको क्या करने का, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? जूम पे जा रिकॉर्ड हो रहा है, इसको कैसा रोक देने का, कैसा ये लाल वाले